Hello listeners, I am Dr. Anuj Kumar Sharma, working in Center for Advanced Studies in Mechatronics program, which is in campus research driven institute of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, located in Lucknow. So, we are discussing the strength of material in this lecture, and today in this lecture we are taking the topic thick cylinders. अभी जो previous lectures हैं, you can see those lectures in which we have discussed about the thin cylinders, right, and thin sphere also, but today we are taking the thick cylinder. The outline of the today's lecture is we will discuss about the introduction of the thick cylinders. तो thick और thin में जो अंतर है वो देखेंगे कि why it is known as the thick cylinder and how they look like और इनका एप्लीकेशन क्या है, एंड देन वी विल सी द इम्पॉर्टेंट थ्योरी विच इज़ द लामीज थ्योरम, बिकॉज न्यूमेरिकल और द डेरिवेशन कम्स ऑन दिस थ्योरी इटसेल्फ. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स हैं, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. तो थिक जब सिलेंडर्स हैं तो उसमें हम लोगों को लामीज थ्योरम थोड़ा सा हम लोगों को डीप में थोड़ा सा समझनी है, क्योंकि स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जब किसी पाइप के अंदर कोई फ्लूइड स्टोर होता है या फ्लो करता है विद वेरी हाई प्रेशर. सो द स्ट्रेसेस विच आर इंड्यूस्ड on the surface or on the in the material of the cylinder, so those can be solved easily by this theory, Lame's theory. Then we will take some special cases of Lame's theory. So we will derive the expression of Lame's theory and we will take the special cases also. And as we know, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ थिन एंड व्हाट इज़ थिक. किसको थिन बोलेंगे, किसको थिक बोलेंगे, क्योंकि थिन में कुछ स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं बट वी कैन नेग्लेक्ट दोज स्ट्रेसेस. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसीडर एनी वेसल, सो लेट्स से दिस इज़ द cylinder and this is the isometric view. Let's say this is the thickness of this cylinder and the thickness, suppose करिए इसकी thickness जो है वो t है, तो हम इस t के बेसिस पे देखते हैं कि whether it is thin or thick. तो अगर thickness हमारी less than or equal to 1/20th of the diameter, जो ये वाला जो diameter है, this is the diameter, then we will call it as thin. लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है यहाँ पे, वी हैव टू स्टडी द थिक सिलेंडर्स. तो इसका मतलब इस वाले केस में जो थिकनेस है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1/20th ऑफ डायमीटर. तो ये वाले केसेस हैं. तो ये जो वेसल्स हैं दे कैन सस्टेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर, और वी कैन से द लिक्विड और द फ्लूइड कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द सिलेंडर और वेसल्स एट वेरी हाई प्रेशर. सो if we see how many types of stresses are induced, generally there are three types of stresses: sigma 1, sigma 2 and sigma 3. All three types of stresses are induced and these three stresses are mutually perpendicular. These are mutually perpendicular, but in this case we cannot neglect sigma 3. In case of thin cylinders we can neglect it because जो हमारी रेडियल स्ट्रेसेस होती हैं, जैसे कोई भी अगर हम एक थिक इसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखें तो लेट्स से कि यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेसेस हो रही हैं वो यहाँ पे और यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी वो डिफरेंट होगी. इन केस ऑफ थिक होता थिन में भी वही है, बट थिन में क्या है कि ये जो डायमेंशन है दिस डायमेंशन इज़ नेग्लिजिबल. सो इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन वी जनरली ट्रीट the variation along the thickness of the cylinder small negligible. So we neglect it, but in the case of thick cylinders we cannot neglect it. So here we have to consider all the three stresses. So here three types of stresses are induced. So if we see, these are the some pictures where you can see the pipe with very high thickness are used to transfer the high pressure fluid or liquid from one point to another point or to storage something. So this is the Lame's theory, very important theory because numericals as well as derivations are important from the point of view of the examination also, and it is very easy to understand because I will discuss the derivation
and that would be very the interesting derivation. So, let us consider a thick cylinder of length L, internal radius r1, and which is subjected to internal and external uniformly distributed pressures of intensities P1 and P2 respectively. मतलब P1 internal की तरफ से लग रहा है और P2 बाहर की तरफ से लग रहा है. So, we are considering the generalized case, and here the pressure intensity is P2, here the pressure intensity is P1, and इसकी जो radius है that is small r, और जो इसकी thickness है that is L. So, let us say this is the thickness. So, this thickness is T, और अगर ये पाइप की बात करते हैं तो वो हमारा L. This is the length of the thick cylindrical shell. So, we have to derive some standard formulae for the Lami's theory. So, we have to take some assumptions. So, just like deriving every the numerical or standard derivation, we generally consider the assumptions also. So, first assumption means the material of the cylinder is linear, homogeneous and isotropic, but in practically situations it is not like that, but we consider it for our simplicity, or we can say for the simplicity of the situation we generally consider it. Now, the second is the plane transverse sections remain plane under the pressure. ऐसा नहीं होना चाहिए कि distortion हो जाए. So, distortion हो रहा है, it means the stresses are not induced or distributed uniformly. So, it means we have to neglect that effect also. So, these two are the important assumptions, and if you will see, the assumption is nearly true at the considerable distance from the ends. अगर हम कोई पाइप देखें तो अगर ये पाइप है तो यहाँ से जो अगर ये वॉल थिकनेस के जितना दूर चले जाएंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रू हो जाता है, और अगर हम वॉल के क्लोज रहेंगे तो वहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है. सो जनरली इट इज़ ट्रू एट अ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स. So, as a consequence of this assumption, the longitudinal strain is constant at all points in the cylindrical wall, that is it is independent of radius. तो radius पे dependent नहीं होती है वो. दूसरा सपोज करिए कि लेट सिग्मा आर, अब यहाँ पे 3 स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही हैं, तो वहाँ पे जो रेडियल स्ट्रेस थी थिन सिलेंडर्स के केस में या थिन स्फीयर के केस में वी जनरली नेग्लेक्टेड, बट हेयर वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट बिकॉज थिकनेस इज कंसिडरेबली हाई. So, here let us say sigma r is the radial stress at any radius r, sigma theta is the hoop stress जो हम circumferential stress की बात करते हैं, and sigma z is the uniform longitudinal stress on all stresses are assumed to be tensile. So, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके यहाँ पे अगर हम देखें तो let us say this is the cross sectional view of the pipe. So, ये जो stresses होती हैं radial stresses, these are represented by sigma r. तो जो stresses ये वाली होती हैं means perpendicular to this. So, these stresses are sigma L, and the stress जो यहाँ पे induce हो रही हैं these stresses are circumferential stresses which in this case are represented by sigma theta. So, all these 3 stresses are mutually perpendicular to each other, right. So, here we have to consider all 3. तो जो लामीज थ्योरी का जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट वी हैव टू डिटरमाइन द रेडियल स्ट्रेसेस. सो यही हम लोगों को डिराइव करना है. सो यहाँ पे अगर हम देखें एप्सिलॉन जो स्ट्रेन है, जो तीनों की वजह से जो स्ट्रेन आ रही है दैट इज़ दी 1/e सिग्मा z. सिग्मा z मीन्स वी आर कंसिडरिंग दिस एज सिग्मा z हेयर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द पाइप, और वी कैन से along the longitudinal axis. So, sigma z minus Poisson's ratio into sigma theta plus sigma r. So, sigma theta is this, sigma r is this. So, this is the strain, longitudinal strain. So, let us consider this cross sectional point, cross sectional view of this pipe. This is a thick pipe. So, we cannot consider the thickness, we cannot neglect the thickness. So, let us say this is the thickness. So, initial radius कुछ रही होगी उसमें थोड़ा सा आगे, तो we have considered this small element. सो दिस स्मॉल एलिमेंट पे हमने देखा कि यहाँ पे सिग्मा थीटा है, यहाँ पे सिग्मा थीटा इक्विलिब्रियम के लिए, जो यहाँ पे जो स्ट्रेस है दैट इज़ सिग्मा आर प्लस डेल्टा सिग्मा आर यहाँ पे इस पॉइंट पे, और जो यहाँ पे जो स्ट्रेस है दैट इज़ सिग्मा आर. अंदर जो प्रेशर है दैट इज़ P1, जो इसकी आउटर रेडियस है दैट इज़ R2, और जो इनर रेडियस है दैट इज़ R1. सो दीज आर द
और हम लोगों ने जो ये बहुत छोटा सेक्शन और एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, डेल्टा आर। तो अगर हम देखें इसका क्रॉस सेक्शनल फ्रंट साइड व्यू देखें अगर इसका, सो ये हमारी थिकनेस है, ये हमारा मटेरियल है और ये जो बीच का हिस्सा है ये हॉलो है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंटरनल प्रेशर P लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर P2 लग रहा है, तो और जो टोटल लेंथ इसकी है दैट इज़ L। तो हम सारे के सारे वेरिएबल्स को लेके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे, फिर हम उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, स्पेशल केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। तो फ्रॉम दी डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू विल डिस्कस द थिंग्स। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है दैट इज़ 1/E इंटू सिग्मा जेड माइनस पॉइजन्स रेशियो मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा थीटा प्लस सिग्मा आर। सो दीज आर कॉन्स्टेंट, सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं इसमें, चाहे एप्सिलॉन जेड की बात करें, ई बात करें, सिग्मा जेड और पॉइजन्स रेशियो। इट मीन्स सिग्मा थीटा प्लस सिग्मा आर, sigma theta plus sigma r, this, so it would be a constant. So let that constant is 2a. So this equation we have assumed for the simplicity of the expression. So consider an annual ring, ये मैं बता चुका हूँ कि एक एनुअल रिंग हम लोगों ने देखी है और जिसकी इंटरनल रेडियस r है अगर, और उसकी जो आउटर रेडियस है r प्लस डी आर हो जाती है। और हम लोग जो है स्ट्रेसेस अगर हम बात करें तो रेडियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं कि थिकनेस के अलोंग क्या डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेस का, यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, मैक्सिमम यहाँ होगी या मिनिमम यहाँ होगी या मैक्सिमम यहाँ मिनिमम यहाँ। सो फॉर दैट वी विल डिराइव सम एक्सप्रेशन एंड वी विल पुट द वैल्यू करेस्पॉन्डिंग टू एनी फाइबर एंड वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रेस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। सो consider the equilibrium of half the ring, we find that bursting force should be equal to this much. So this is the force sigma r plus delta sigma r into, this is the area 2r plus dr into L minus sigma r into 2rl. So this is very simple expression, just we are putting the equation of equilibrium. So here you can say simplifying and neglecting the small quantities, जो भी हमारा जैसे प्रोडक्ट हो रहा है कि स्मॉल क्वांटिटी कौन सी है, जैसे यहाँ पे डेल्टा सिग्मा आर, if we multiply it with delta r then we can neglect this quantity. So ultimately what we are getting, this is the bursting force after neglecting small product of the small quantities becomes more smaller, so then we have neglected that quantity. So resisting force कितना हो जाएगा यहाँ पे, that would be equal to 2 into ये जो हमारी स्ट्रेस है हुप स्ट्रेस जिसको बोलते हैं हम लोग, 2y2, बिकॉज दोनों तरफ अगर हम कट कर रहे हैं इसको, यहाँ से कट कर रहे हैं और यहाँ से कट कर रहे हैं, देन यहाँ पे और यहाँ पे जो स्ट्रेस, जो हुप स्ट्रेस जो इंड्यूस हो रही है ये वाली, तो दोनों तरफ हो रही है, दैट्स वाई वी हैव मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड एल डी आर, तो दिस इज द लेंथ मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का जो चेंज है उससे जब निकालेंगे दैट विल गिव यू द एरिया, सो एरिया मल्टीप्लाइड बाई द स्ट्रेस दैट विल गिव अस द बर्स्टिंग रेजिस्टिंग फोर्स। तो अब हम इन दोनों को बराबर रख देंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द रिंग। सो व्हाट वी हैव डन, सो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तो ये दोनों जो हैं हमारे बराबर हो गए। सो फॉर इक्विलिब्रियम वी हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो लिमिटिंग केस की अगर हम बात करें तो वी हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन, सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा आर प्लस आर इंटू डी सिग्मा आर अपॉन डी आर। तो ये लिमिटिंग केस के लिए हम लोगों ने जो अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने डी अपॉन डी आर इंटू आर सिग्मा आर, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को ये यहाँ से यहाँ पे जब इसको हमने अगर डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स अगर हम यहाँ पे करते हैं इसको, तो वी हैव टेकन दिस कॉमन एंड देन वी कैन डिफ्रेंशिएट इट बाई कीपिंग वन कांस्टेंट अदर वेरिएबल, अदर कांस्टेंट फर्स्ट वेरिएबल। तो what we have done, we have substitute the equation the value of this sigma theta in the equation sigma theta plus sigma r is equal to constant। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी इसमें हमने पुट कर दिया ये वाली जो वैल्यू है सिग्मा थीटा की, सो वी हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स r इंटू डी सिग्मा आर अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 इंटू a माइनस सिग्मा आर। So upon simplification we are getting d sigma r upon dr is equal to 2 into a minus sigma r upon r। तो ये वाला जो
r है that has come to this side denominator, then we have got this expression. So अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो सिग्मा आर अपॉन ए माइनस सिग्मा आर इज इक्वल टू 2 डी आर अपॉन आर, तो ये एक्सप्रेशन हमको मिला. जस्ट वी आर rearranging the terms. So now we can integrate it. So upon integration we can get integration of left hand side is equal to integration of right hand side, or we can say upon integration we are getting this value. So minus log of a minus sigma r is equal to, यहाँ पे 2 is the constant, 2 बाहर तो 2 log r minus log b is the constant of integration. So when we take this, so log a minus sigma r is equal to minus 2 log r plus log b. So we have again multiplied the whole equation by negative sign. So we have got this. So now log a minus sigma r is equal to log b upon small r square. So this way we have got this expression. So a minus sigma r is equal to b upon r square. अगर हम इसको again simplify करते हैं, so this equation we got. Sigma radial is equal to a minus b upon r square, where a and b are the Lami's constant. तो b एक कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है जो हमने स्टार्टिंग की इक्वेशन में लिया था, और यहाँ पे अनदर कांस्टेंट है. सो दीज टू कांस्टेंट्स आर नोन एज द Lami's कांस्टेंट. So now what we have done, we can substitute sigma r is equal to this in this expression जो यहाँ पे a constant था. So we can get another equation. So that another equation is sigma theta is equal to a plus b r square. So here we have derived these two expressions in this a and b, and this is dependent on small r. So now we can find sigma r and sigma theta. This is the hoop stress and this is the hoop stress and this is the radial stress. तो दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं if we know the value of a and b. तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो a और b जो हैं ये Lami's कांस्टेंट्स हैं, एंड दीज टू इक्वेशंस आर नोन एज द Lami's इक्वेशंस. तो इन्हीं की हम ड्राइव करने की बात कर रहे थे. ना बाउंड्री कंडीशंस अगर हम देखें तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेस है, यहाँ पे कुछ स्ट्रेस है. सो एट r इज इक्वल टू r1 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर. तो जो अंदर की सरफेस पे बात करते हैं तो ये, और अगर बाहर की सरफेस पे बात करते हैं तो ये. तो वी कैन पुट हेयर r इज इक्वल टू r1, देन वी विल गेट वन इक्वेशन इन a एंड b. तो अगर हम बात करते हैं पहली कंडीशन की, तो एट r इज इक्वल टू r1 जो हमारी रेडियल स्ट्रेस है वो कितना हो जाएगा, that would be equal to the negative of the pressure, because pressure is filled inside. So radial stress कितना हो जाएगा minus P1. और अगर दूसरी कंडीशन बात करें R is equal to R2, तो सिग्मा R जो है वो कितना हो जाएगा, ये बाहर वाला, that is minus P2 because it is compressive. So that is why the negative sign has come. So these two are the boundary conditions. तो यहाँ पे अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करें इन दिस एक्सप्रेशन, सो व्हाट वी कैन गेट सिग्मा आर इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ पे इसमें हम लोगों ने सिग्मा आर की जो बाउंड्री कंडीशंस थी, वी हैव पुट दोज वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन. यहाँ पे हमने पुट किया, सो वी गॉट सिग्मा आर इज इक्वल टू पाई माइनस पी वन इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन r की जगह हम लोगों ने क्या रखा है, r1 स्क्वायर. सो वी हैव गॉट दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन, एंड हेयर वी हैव गॉट माइनस p2 इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन r2 स्क्वायर. सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी हैव गॉट टू इक्वेशंस, वन इक्वेशन इज दिस, one equation is this. Now what we have done, we have subtracted this expression from this. So that is why it is coming as minus P2 minus P1. So it has come because we want to remove this. This is the common. If we will subtract, let's say this equation is A1 and let's say this equation is A2. So what we have done, we have done A2 minus A1. So by this we have got P1 minus P2 is equal to B
into this expression, and upon simplification what we have done, we have taken the LCM. So, LCM is R1 square, R2 square, and this we got. So, it means P1 minus P2 is equal to B into R2 square minus R1 square upon R1 square R2 square. So, from here we can get the value of B. Now, we can simplify this B also, again we can rearrange the terms. So, B has become this. So, this is the first Lamy constant, this we have to remember. So, what we have to do, we can remember those two equations, sigma r is equal to A minus B upon R square and sigma theta is equal to A plus B upon R square. So, these two equations we can remember along with the value of this B. If we know the R1, R2, P1, P2, then we can calculate the Lamy's constant B. Then this is the second equation, A is equal to B upon R1 square minus P1. यहाँ से जो हम जो है वैल्यू है, अगर इसके अंदर हम B की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली, ये जो B है अगर ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करें, सो वी कैन गेट दिस एक्सप्रेशन. उसके बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. एलसीएम अगर हम ले लें तो ये जो इक्वेशन है इट कैन बी सिंप्लीफाइड इन दिस वे. सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द ए ऑल्सो. एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे जिससे हम ए भी याद कर पाएँ. तो लामीज जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं ए और बी, दैट वी कैन फाइंड आउट. सो दिस इज अ सिंपल मैथमेटिक्स. इसको हम रीअरेंज करते हैं. सो ए इज व्हाट? ए इज दिस. वी हैव गॉट बी, वी हैव गॉट ए, वी गॉट द इक्वेशन Lamy's equations in terms of sigma theta and for sigma r, and now we know the A and B. So, likewise we can calculate the stresses for any thick cylinder. So, this is the sigma r. अब जो हमने उसमें A और B की वैल्यू जो पुट की है उस वाली इक्वेशन में, so this is the sigma r. This expression we have to remember. Again we can simplify it, but it is in the simplified form. This is the sigma theta. So, these two formulas are important क्योंकि वो इसकी बात करता है. या तो वो सिग्मा आर कैलकुलेट कराएगा, और सिग्मा आर क्या है कि अगर कोई स्फेयर है तो यहाँ से यहाँ तक जो वेरिएशन है वो किस तरह का वेरिएशन, वेदर इट इज़ पैराबोलिक और इट इज़ लीनियर, बट इट इज़ नॉट लीनियर. I think it is should be the parabolic because we don't have any linear term. So, it is dependent on the r square. So, it cannot be linear, it is parabolic. So, we will get this kind of curve. So, यहाँ पे जो भी स्ट्रेस की वैल्यू होगी सिग्मा r, यहाँ पे जो सिग्मा r होगी अगर हम उसको प्लॉट करें डिफरेंट पॉइंट्स पे, सो दैट वी हैव टू कैलकुलेट. यही हमको देखना है यहाँ पे, राइट. So, these two expressions are of our interest. We have to remember sigma r, sigma theta, and we have to जैसे यहाँ पे देखा हमने कि ये अगर हमको यहाँ पे इंटरनल कंडीशन जो है लेट से r इज इक्वल टू r1 एंड यहाँ पे r इज इक्वल टू r2. सो ये रेडियस, ये बाउंड्री कंडीशंस हो गई. और यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन में सिग्मा r को अगर हम प्लॉट करना चाह रहे हैं तो सिग्मा r r1 और r2 पे डिपेंडेंट है, p1 p2 पे डिपेंडेंट है. तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू रखते रहेंगे और हमें अलग अलग वैल्यू मिलती रहेगी. देन अगर हम इसको मैच करते हैं तो इस तरह का हमको कर्व मिल जाता है. सो दिस इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द वॉल थिकनेस, राइट. अब कुछ हम स्पेशल केसेस ले लेते हैं. फॉर्मूला वी हैव ड्राइव्ड, अब बस उसमें बाउंड्री कंडीशंस पुट करते रहिए एंड यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले. तो 4-5 special cases are there, so then we can discuss one by one. If we'll see the first case, let's say the internal pressure is applied only and we don't have any external pressure. मतलब बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है. बाहर से मतलब कि ये अगर हमारा स्फेयर है तो इस पे जो बाहर से जो प्रेशर लग रहा था P2, that is equal to 0. So, only we are having the pressure from inside. तो सिग्मा r की वैल्यू ये हो जाएगी. तो उस वाले एक्सप्रेशन में जो हम लोगों ने डिराइव किया है उसमें r P2 की जगह 0 पुट कर दीजिए. ये P2 की जगह 0 पुट करेंगे तो सिग्मा r की वैल्यू ये हो जाएगी और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन ये आएगा. सिग्मा थीटा को अगर हम उसमें P2 की वैल्यू 0 रखेंगे देन वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन. और जो हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा इसका दैट वुड बी दिस. सो दिस इज सिग्मा r एंड दिस इज सिग्मा थीटा. सो ये दो फॉर्मूले, आइदर यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूले और नहीं तो फिर आप वो जो पुराना फॉर्मूला है उसको याद करिए और उसमें जो भी बाउंड्री कंडीशन है वो आप लगा दीजिए. तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन मिलती है तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए सीधे सीधे. दूसरा केस देखते हैं.
दूसरे केस में क्या है कि इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ओनली, इंटरनल प्रेशर कुछ नहीं है, मतलब कि जो पाइप है दैट इज एक्टिंग इन द वैक्यूम, बाहर वैक्यूम है, अंदर प्रेशर ज़ीरो है, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे अगर हम बात कर रहे हैं, और वैक्यूम नहीं मतलब बाहर कुछ भी प्रेशर है, वैक्यूम है या गेज प्रेशर है जो भी है, लेकिन अंदर जो प्रेशर है वो ज़ीरो, अंदर कोई प्रेशर नहीं काम कर रहा, तो इन दैट केस P1 शुड बी ज़ीरो। तो इफ़ विल अप्लाई P1 इक्वल टू ज़ीरो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। उसी वाली इक्वेशन में आपने यहाँ पे ए किया, सो यू हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन। तो सिग्मा आर का ये एक्सप्रेशन आया, और सिग्मा थीटा का अगर उसमें रखते हैं तो यू विल गेट दिस। So these are the expression, very easy to remember, they have standard signatures. So we can remember, so only 4 variables we have, P1, P2, R1, R2. So in these 4 variables we can have the value of sigma R and sigma theta. Next case देखते हैं, if solid circular shaft which is having external radius pressure, तो solid circular shaft है, right, hollow नहीं है, एक्सटर्नल रेडियल प्रेशर अगर रखें तो R1 भी ज़ीरो है, क्योंकि वो जो हमारा ये पाइप है इट हैज़, जो ये वाला हमारा जो रेडियस है इंटरनल, इट हैज़ कम टू ज़ीरो, मतलब दिस इज़ सॉलिड, तो R1 इक्वल टू ज़ीरो हो गया। और R1 जब ज़ीरो होगा इसका मतलब अंदर से हॉलो नहीं है, कोई पाइप फ्लो नहीं होगा, वो पाइप नहीं हुआ, वो एक बार हो गई, राउंड बार हो गई। तो उसमें अगर हम पुट करेंगे R1 ज़ीरो और P1 ज़ीरो, देन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस वुड बी इंड्यूस्ड ऑन दिस, तो सिग्मा R इज इक्वल टू माइनस P2 एंड सिग्मा थीटा इज इक्वल टू माइनस P2। तो दो तरह की स्ट्रेसेज आएंगी। तो ये आपका सिंपल केस हो गया। सो नो नीड टू रिमेंबर दीज स्पेसिफिक केसेस, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ दीज कम्स बेसिकली। सो ये हमारा सिग्मा आर सिग्मा थीटा दोनों बराबर होंगे एंड दैट शुड बी इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इंटेंसिटी। सो दस द रेडियल एंड हुप स्ट्रेसेस आर इक्वल एंड कांस्टेंट। नेक्स्ट केस अगर हम देखें तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो टाउ मैक्स कितना होता है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बाई टू, मतलब एवरेज होता है, एवरेज ऑफ डिफरेंस का। सो यहाँ पे अगर हम देखें टाउ मैक्स इज हाफ, हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू पुट की है, सिग्मा थीटा सिग्मा आर, तो वी गॉट B अपॉन R स्क्वायर। शियर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम एट R इज इक्वल टू R1, सो दिस इज द टाउ मैक्स। सो लाइकवाइज वी कैन हैव द स्पेशल केसेस। सो स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोगों को याद रखना है, बाकी जो भी फार्मूलेज हैं वी कैन गेट बाय पुटिंग द बाउंड्री कंडीशंस। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर थिक सिलेंडर्स। इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए वी कैन रेफर द नेक्स्ट लेक्चर्स आल्सो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।